Hello and welcome to the live lecture. I hope all of you are doing fine. Today we are going to study the second chapter in science. We've already studied matter in our surrounding. However, today the name of the chapter that we are going to study is matter around us pure? Well, actually it is a question. To the chapter we will get to know the answer to this question. Let's quickly get to the notes of this chapter. Is matter around us pure? Okay. See, so first of all, let us understand that whatever is around us, the matter, whatever, so what is matter? So matter is something which occupies space, right, and has a mass. ठीक है, तो अब वो प्योर है या नहीं है? So it can be a pure or it can be a mixture of various substances. So the matter is made up of only one type of substance, then it will be known as pure matter. ठीक है? Let me go ahead and open it up for you. Yes. ठीक है, so let us quickly see. So the types of matter. So the matter can mainly be classified into two types. So it can be either pure or it can be impure. और impure matter मतलब it can be a mixture of various substances. और pure है इसका मतलब वो सिर्फ एक तरह के substance से बना है. ठीक है, तो pure substance क्या वो होगा? A homogeneous material which contains particles of only one kind and has a definite set of properties. ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरीके के substance से बना हुआ है तो उसकी properties भी पर्टिकुलर उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, लाइक दिस इज. एंड व्हाट इज अ मिक्सचर? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ऑलराइट, सो रिमेंबर, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड और कंबाइंड in a proportion, in a particular proportion, ठीक है, then it is known as a mixture. And they should not, all right, so remember, they should not also go through any chemical change. उनके बीच में अगर reaction हो जाती है तो then it is not a mixture. A mixture is the mixed substances, all right, so multiple substances mixed together. अब वो किस proportion में है, कम, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, that is a different thing, but they should be mixed in a particular substance, right, and they should not chemically react. And the types of mixture can be, so this can also be of two types. The types of mixtures can be of two types. One is homogeneous and the other is heterogeneous, right? So heterogeneous mixture क्या होता है? A mixture in which different constituents are mixed uniformly, right? अगर किसी mixture में, a mixture in which different constituents are mixed uniformly is called homogeneous mixture. Yes, I'm sorry. So homogeneous mixture क्या होता है? जिसके अंदर वो uniformly distributed होता है, right? And heterogeneous mixture क्या होता है? जिसके अंदर वो uniformly distributed नहीं होता है, right? So एक substance, उसके अंदर दूसरा substance मिला हो और वो बराबर से distributed ना हो, then it is heterogeneous. और अगर वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो देन इट इज़ होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हैं. और कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद नेकेड आइज. और हेटेरोजेनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें नेकेड आई से दिख सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? सैंड एंड आयरन फिलिंग्स. ठीक है, सैंड एंड वाटर, जैसे पानी के अंदर मिट्टी को अगर मिला दें, राइट, सैंड को मिला दें, राइट, देन इट विल बी अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. क्यों?
क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स आप देखेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे नीचे, राइट, द बॉटम ऑफ द बीकर और द बॉटम ऑफ द कंटेनर जिसमें आपने पानी फिल किया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि नीचे ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, ना ही वो मिक्सअप होंगे प्रॉपरली। लेकिन हाँ, वो मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर कौन सा टाइप का है? हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। उसी तरह अगर होमोजेनस मिक्सचर की बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर वुड बी अ काइंड ऑफ मिक्सचर जहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइक सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, ठीक। तो क्या होगा, वो मिक्स्ड हैं वाटर के अंदर, लेकिन वो प्रॉपरली सारे वाटर के पूरे जो वाटर है उसके अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और अच्छे से मिक्स होंगे, ठीक। अच्छा, सॉल्यूशंस क्या आता है? तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे बताया आपको, होमोजेनस मिक्सचर जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स्ड हों, सो दैट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी at the particular level, at the particle level. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid or a liquid or a gas dissolved in it, ठीक है। अब homogeneity of at the particle level, ठीक है। अब solution के अंदर क्या होता है, उसके मिक्स करने की एक लिमिट होती है, राइट, उसकी मिक्स होने की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे वो सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, सॉल्यूशन जिसमें हम बात करते हैं कोई लिक्विड, यूजुअली, राइट, रिमेंबर द टर्म इज यूजुअली, अधिकतर अक्सर क्या होता है, लिक्विड जो होता है उसके अंदर कोई सॉलिड मिला होता है या कोई दूसरा लिक्विड मिला होता है या समटाइम्स गैस मिली हुई होती है जब हम बात कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन की। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, वी कैन हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन एज इन द केस ऑफ एलॉयज, ठीक है। लेकिन दूसरे भी सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर सॉलिड के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस जो है वो मिक्स्ड होता है, जैसे कि इन केस ऑफ एलॉयज। तो एलॉयज के अंदर क्या होता है, एक मेटल के अंदर और दूसरे मेटल को मिक्स किया जाता है एंड इट इज़ होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि थ्रू आउट उसको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, और आपको पता ही है द एयर अराउंड अस इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ठीक है। उसके अंदर आपको मिलेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड तो कंप्लीट जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, राइट। तो मेनली इसमें मिलता है आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो मेनली तो दो चीज़ें हैं, जो 21% अप्रॉक्सीमेटली इज ऑक्सीजन एंड 78% इज nitrogen, and remaining 1% is the rest of the gases, ठीक है। Alloys. What are alloys? Alloys are homogeneous mixtures of metals and cannot be separated into their components by physical methods, ठीक है। तो alloys क्या होता है, homogeneous mixture, जैसे कि अभी आपको बताया। तो alloys are the homogeneous mixture, वहाँ पर एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल को मिक्स किया जाता है, और वो भी इस तरीके से कि वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, राइट। ये कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of 30% zinc and 70% copper, ठीक है। लेकिन alloys अभी भी alloys को, लेकिन फिर भी alloys को मिक्सचर ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जिस मटेरियल से वो बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं, ठीक है। और जैसे alright, now let us see the components of a solution, ठीक है। So the component of a solution, the substance present in a homogeneous solution are called components of a solution. किसी भी solution के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, so those are the components of the solution. A solution basically has two components, और mainly उसके दो components होते हैं, एक तो solvent and एक solute. सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर कोई चीज़ मिक्स की जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं शुगर इन वाटर। तो इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है,
वाटर, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, जिससे मिक्स किया जाता है उस सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज नोन एज द सॉल्यूट। और जो जिसके अंदर मिक्स किया जा रहा है उस सब्सटेंस को या उस कॉन्स्टिट्यूएंट को कहेंगे सॉल्वेंट। लाइक शुगर इन वाटर, तो शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घुला लेता है, अंदर मिक्स कर लेता है। A solvent is the larger component of the solution, definitely भाई जब वो उसके अंदर अपने आप को मिक्स, जब दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर मिक्स कर रहा है, so definitely it will be a larger component. Example solution of sugar in water is solid in liquid solution, right? तो अब solid होता है sugar particles are solid and water is liquid. So sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution sugar is the solute and water is the solvent. तो water होगा इसके अंदर solvent और sugar होगा solute, ठीक है। तो solute क्या होता है, definition देख लेते हैं। The component of the solution which dissolves in the solvent is called solute. The component of the solution जो कि component है किसका, solution का, और वो dissolve करेगा solvent के अंदर, so then it is a solute. The solute is the smaller component of the solution, ठीक है। जो ऑब्वियसली क्योंकि वो ज़्यादा नहीं होगा, वो खुद मिल रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, सो देन इट विल बी लेस इन क्वांटिटी, सो दैट इज द क्वांटिटी इज नोन एज स्मॉलर क्वांटिटी, राइट। तो वो सॉल्यूट जो होगा इट विल बी स्मॉलर इन नंबर, राइट, स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ अल्कोहल नोन एज टिंचर आयोडीन। आयोडीन इज द सॉल्यूट, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेके जाएं तो टिंचर आयोडीन, जिसके अंदर आयोडीन जो है वो मिलाया जाता है अल्कोहल के अंदर, सो देन इट इज अ सॉल्यूशन एंड आयोडीन ओवर हियर इज द सॉल्यूट। सिमिलरली इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज द सॉल्यूट, ठीक है। तो सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलाई जाती है वाटर के अंदर, और जैसे ही आप उसको आप कोक की बॉटल को या कोल्ड ड्रिंक को जब आप ओपन करते हो तो उसके अंदर से गैस निकलती है, देन दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो क्या होता है, पानी के अंदर उस गैस को डिसॉल्व किया जाता है, और जैसे ही वो खुलती है तो थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे गैस बाहर आने लगती है। तो वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैस इनसाइड वाटर, ठीक है। तो पानी के अंदर गैस को मिक्स किया जाता है, कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये अभी हमने देख लिया। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो यूनिफॉर्मली होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। The size of solute particles is in a solution is extremely small. It is less than 1 nanometer in diameter, ठीक है। तो अब जो solute particles के जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और साइज बता रहे हैं 1 nm 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, बहुत ही छोटा होता है। The particles of a solution cannot be seen even with a microscope. वो इतना छोटा होता है कि उसके जो particles हैं वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। The particles of a solution to pass through the filter paper, so a solution can be separated by filtration, ठीक है। तो अगर हम उस सॉल्यूशन को, ठीक है, अब उस पार्टिकल्स को, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से पास करें ताकि, और वो तब आप पता चलेगा कि वो फिल्ट्रेशन से भी और अलग नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो जैसे कि आप शुगर इन वाटर, ठीक है, अब उसको आपने डिसॉल्व कर लिया है, दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब आप उसको किसी फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो अलग हो गए हैं, शुगर अभी भी डिसॉल्व है वाटर के अंदर। द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, डेफिनेटली दे विल बी स्टेबल क्योंकि वो डिसॉल्व हो गए हैं उनके अंदर।
द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, ठीक है। और वो स्टेबल ऐसे होते हैं कि उसको आप काफ़ी देर के लिए छोड़ देंगे कहीं तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मिक्सअप इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो तब ही वो सॉल्यूशन कहलाता है, और वो ऐसा नहीं है कि रखने से ऑटोमेटिक उसके अंदर से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। और अगर जो ट्रू सॉल्यूशन है मतलब कि उसके अंदर प्रॉपरली सब डिजॉल्व हो गए हैं सॉल्यूट, तो वो जब उसके अंदर से आप उसके थ्रू आप लाइट पास करोगे तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। और लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं कि जो लाइट रे है उनसे और वो टकरा नहीं रही है और सीधा क्रॉस कर जा रही है, सीधा थ्रू जा रही है, ठीक है। उसको कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होगी। ओके, तो अब अपन बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन किसी चीज की क्या होती है? अभी हम साइंस की में बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन, तो वो क्या होती है? कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स्ड है, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, कितना ग्राम या कितना मास का सॉल्यूट आपने और उसके अंदर मिलाया हुआ है, सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर मिलाया हुआ है, सो दैट डिफाइंस द कंसंट्रेशन, ठीक है। सो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिलाया हुआ है, दैट डिफाइंस द कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आप मिलाएंगे उतनी हाई कंसंट्रेशन कहलाएगी। In a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied, ठीक है। और वो चेंज हो सकती है, राइट। कभी किसी में कम, किसी में ज़्यादा। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or a saturated solution, ठीक है। तो अब concentration के बेसिस पे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत कम उसके अंदर किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम सॉल्यूट है, देन इट विल बी नोन एज डाइल्यूटेड, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट जो है वो कम है, ठीक है। तो देन इट विल बी नोन एज डाइल्यूटेड, ठीक है। अगर सॉल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, सो देन इट विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर सॉल्यूट उस लेवल पे है कि अगर आप ज़रा भी, ठीक है, बहुत मामूली सा भी सॉल्यूट उसके अंदर और ऐड करते हो और वो अब मिक्स नहीं होता, वो अपने मिक्स होने की जो लिमिट है उस पर आ चुका है, सो देन द सॉल्यूशन वुड बी नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट और ऐड करने पर मिक्स नहीं हो, जब सॉल्यूट और बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा, सो इट विल बी नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक जितना मिला रहे थे तो मिल रहा था, वही सॉल्यूट जो है मिला रहे थे जब तक तो मिल रहा था, पर एक लिमिट आएगी उसके बाद वो मिक्स नहीं होगा। तो बस वो लिमिट जब आ जाएगी, देन द सॉल्यूशन वुड बी नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेज इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। और बहुत सारे सब्सटेंस है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंसेज की अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई जो है वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है और सेम टेम्परेचर पे, और कोई जो है वो आसानी से नहीं होता, उसको काफ़ी मिलाना पड़ता है, ठीक। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द परसेंटेज मेथड, ठीक है। और परसेंटेज मेथड से बताया जाता है कि कितने सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है, और यही मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है जिसमें बताया जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। कितना परसेंट, कि मान लीजिए अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में और 1
ग्राम सॉल्यूट है, तो कितना परसेंट हो गया? 1/100 इंटू 100, तो कितना परसेंट हुआ? 1% कॉन्सेंट्रेशन हुई। समझ में आ रहा है? अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में और 10 ग्राम सॉल्यूट है, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? 10/100 इंटू 100, तो देन द कॉन्सेंट्रेशन इज 10%। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कॉमन मेथड है जिस तरीके से बताई जाती है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये इसका वो फॉर्मूला दे रखा जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो अभी बात कर रहे हैं हम मास की। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो मेथड था उस बताया वो मास से कि वजन से अगर बताएंगे। ठीक है, अब कुछ केसेस में परसेंटेज वॉल्यूम से भी बताई जाती है। ठीक है, वॉल्यूम कि उसका जितना वॉल्यूम है, मान लीजिए 100 ml है या 1000 ml है। ठीक है, और उसके अंदर कितना ग्राम सब्सटेंस है, कितना ग्राम सॉल्यूट है, इस तरीके से भी बताया जाता है। तो देन इट इज बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो कितने ग्राम सॉल्यूट मौजूद है कितने वॉल्यूम सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये भी बताया जाता है और इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस आ जाएगा, इस केस के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, बस इतना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस के अंदर हम देख रहे थे मास बाय मास सॉल्यूशन, राइट, तो बाय मास परसेंटेज, और दूसरे वाले में देख रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो दिस विल बी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और दूसरे फर्स्ट केस वाले क्या था जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन and multiply by 100, so this will be the percentage on the basis of mass concentration कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर लीटर। ओके, नेक्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आपको बताया, अ सॉल्यूशन विच एट अ गिवन टेम्परेचर डिसॉल्व्स एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हो जाते हैं, स्पेस बन जाती है, तो और भी थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है। आपने घर पे भी देखा होगा कि आप ठंडे पानी के अंदर मान लीजिए और शुगर, इफ यू ट्राई टू डिसॉल्व शुगर इन कोल्ड वाटर, लाइक कोल्ड वाटर मीन्स रेफ्रिजरेटेड वाटर। ठीक है, तो इट विल नॉट मिक्स अप इजीली, राइट, बिकॉज द पार्टिकल्स आर नॉट एट गुड मूवमेंट, राइट, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट सो हाई। ठीक है, तो इसलिए मूवमेंट उनके नहीं हो रहा है, तो दे आर नॉट मूविंग। हाउएवर, अगर आप वही चीज़ थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी में आप शुगर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो देन इट विल बी इजीली डिसॉल्व, राइट, एंड द रीजन इज बिकॉज दे आर एट हाई एनर्जी लेवल, सो दे हैव स्पेसेस, एंड उस स्पेस में शुगर पार्टिकल्स विल इजीली बी सेटल्ड, तो वो इजीली मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर से फर्क पड़ जाता है। तो अभी अपन लेकिन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन देयर विल बी अ पर्टिकुलर लिमिट अ solute can be dissolved, and the peak when it reaches the peak, that after that the solution or the solute will not be dissolved or the solution will not accept any more solute. तो solution के अंदर बिल्कुल भी solute वो नहीं dissolve करेगा, so then it will be known as saturated solution. ठीक है, तो वो एक बार जब पीक आ जाएगी, जब आप मिलाते रहोगे, एक चम्मच आपने मिलाया शुगर में भी मिल गया, एक गिलास आपने वाटर लिया, एक गिलास पानी में आपने 1 टेबल स्पून आपने शुगर मिलाया, वो में भी मिल गया, उसको आपने थोड़ा मूव किया, वो मिल गया, फिर आपने और 1 स्पून मिलाया, ठीक है, वो मिल गया। अब उसके बाद में अब आपने 1 स्पून और मिलाया, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो क्या हुआ था, 2 के बाद में वो सैचुरेट हो गया है, और उसके बाद अब वो मिलेगा नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर पीक आ जाए, जहाँ पर ऐड करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व ना हो। ठीक,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका उल्टा, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेशन लेवल, ठीक है। सैचुरेशन लेवल मतलब होता है कि वो लेवल जहाँ जिसके बाद सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, ठीक है। और उससे पहले क्या है, उससे पहले तक तो सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड ही है, ठीक है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, ठीक है। सैचुरेशन लेवल से कम सॉल्यूट अभी मौजूद है तो उसमें और ऐड करोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 स्पून जब आपने ऐड किया था तो उसके बाद में 1 स्पून और ऐड करने की स्कोप था, ठीक है, और ऐड हो सकता था। सो इट मीन्स कि 1 स्पून ऐड करने के बाद में भी वो अभी अनसैचुरेटेड ही है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी अनसैचुरेटेड था, 1 स्पून ऐड किया फिर भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन 1 स्पून एक और ऐड कर दिया है और वो मिल चुका है। और उसके बाद में 3rd स्पून जब हमने ऐड किया है शुगर का तो वो नहीं ऐड हो रहा है, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 2 स्पून जो शुगर है वो उसका सैचुरेशन लेवल है 1 ग्लास ऑफ वाटर का। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट, डेटा कैन बी डिफरेंट, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 स्पून जब आपने शुगर लिया था देन इट इज अनसैचुरेटेड, और 2 स्पून शुगर लेने के बाद में सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, ओके, ठीक है। एंड 1 इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर ऑफ द सोल्यूट देन रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपको जरूरत से ज्यादा, ठीक है, अब आपको सैचुरेट करने के लिए सोल्यूट को ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर ऑफ द सोल्यूट देन रिक्वायर्ड, ठीक है। जितना सॉल्यूट जो भी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा सॉल्यूट आपको ऐड करना पड़े ताकि वो सैचुरेट हो जाए, ठीक है। यूजुअली जो भी आपकी क्वांटिटी चाहिए सैचुरेट करने के लिए उससे ज़्यादा अगर सॉल्यूट आपको ऐड करना पड़े सॉल्यूशन में, सो देन इट इज़ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्यूट की भी सॉल्युबिलिटी है और वो क्या होती है कि कितना सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, एंड एट अ गिवन टेम्परेचर, रिमेंबर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि आपको बताया मैंने टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पे सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर वुड बी the amount in grams, obviously, right, the amount of solute in grams which can be dissolved in the solvent or in 100 gram of water, ठीक है। अब ये कुछ आपको सॉल्युबिलिटी जो है वो दी हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी, 100 ग्राम पानी के अंदर और कितना ग्राम ये सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो पाएगा, मिक्स हो पाएगा। सो दैट इज, कॉपर सल्फेट की बात करें तो 21 ग्राम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई 21, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो 32 ग्राम, ठीक है। तो शुगर की बात करें तो 204 ग्राम, ऑलराइट। तो शुगर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर के अंदर आप मैक्सिमम 204 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, देखो सस्पेंशन मतलब ऐसा होता है टू कीप हैंगिंग, ठीक है, उसको लटकाना, ठीक है। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। सस्पेंशन क्या कहलाता है, अगर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, या मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो हैं थ्रू आउट लेकिन डिसॉल्व नहीं है, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो हैं थ्रू आउट लेकिन डिसॉल्व नहीं है, तो देन इट इज अ सस्पेंशन, ठीक है। ध्यान रखिए ये सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, वो मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं वो थ्रू आउट स्प्रेड हो चुके हैं, ठीक है। जो जिसके अंदर वो मिक्स किया गया है उसके मिक्सचर के अंदर वो थ्रू आउट स्प्रेड है लेकिन डिसॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब वो सिर्फ उसमें जगह जगह पर
डिस्ट्रीब्यूटेड है, जगह जगह पर वो लटके हुए हैं, राइट? तो ऐसा ही लगेगा ऑब्वियसली. The particles have a tendency to settle down at the bottom of solvent and can be filtered out because their size is bigger than the size of the pores of filter paper. ठीक है. और ये particles क्या होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ठीक है कि बहुत धीरे 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 और वो सॉल्वेंट के नीचे जाने लगेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, और उनका साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए उसे फिल्टर पेपर से आप सेपरेट कर सकते हैं. जैसे चॉक वाटर मिक्सचर इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन चॉक पार्टिकल्स इन वाटर. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल क्या होगा कि बिल्कुल जो चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को पानी के अंदर मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि वाटर के अंदर चॉक पार्टिकल्स जो हैं वो आपको दिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. लेकिन बहुत ही देर तक उसको आप छोड़ देंगे तो बहुत ही धीरे 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 वो नीचे आएंगे, नहीं तो वो ऊपर ही लटके रहेंगे. क्या उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं? यस, फिल्टर पेपर से उसे चॉक पाउडर को आप सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से. और क्या एग्जांपल है? मडी वाटर इज अ सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन वाटर. पानी के अंदर मड, ठीक है, वो भी ठीक है. तो आपने भी देखा होगा कि मड जो है वो आपको वाटर में ऊपर नीचे सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड मिलती है. ठीक है. तो मड जो है वो क्या होते हैं, मड के पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो एक सस्पेंशन है. वो मिक्सचर जो है वो एक सस्पेंशन है जिसमें धीरे धीरे ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मड पार्टिकल्स भी नीचे नीचे आने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन. सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन क्या होता है, जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े मोटे साइज के हैं और वो डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है. तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो उसे हम सस्पेंशन बोलेंगे और वो जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द मिक्सचर. अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. एक जो सस्पेंशन होता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, इसमें कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ऐसे पार्टिकल्स होंगे. द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज. इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. ठीक है. और ऑब्वियसली क्योंकि उसको हम फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर पा रहे हैं, तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है. और वो साइज़ क्या बताया, अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. तो उनका जो डायमीटर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर होगा. राइट स्टूडेंट्स, नैनो इज 10⁻⁹, 10⁻⁹, राइट. 10⁻⁹ इज नैनो. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली. ऑब्वियसली क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा है तो इसलिए वो पार्टिकल्स को आप ईजिली देख भी सकते हैं. A suspension scatters a beam of light passing through it because its particles are quite large. ठीक है. और अगर एक बीम ऑफ लाइट, अगर एक टॉर्च, ठीक है, टॉर्च से एक लाइट आप उसके पार्टिकल्स के अंदर से या उस मिक्सचर के थ्रू आप क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट बीम जो है वो स्कैटर हो रही है, बिखर रही है. और क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े हैं. सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े हैं, इसलिए जो लाइट बीम है वो स्कैटर हो पा रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है. और पार्टिकल जो हैं सस्पेंशन के वो ऑब्वियसली धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएंगे, लेकिन कब? जब उसको काफ़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे. The process of setting of suspended particles under the action of gravity is called sedimentation. और यही प्रोसेस जो है जहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएंगे एट द बेस ऑफ द कंटेनर, जहाँ पर मिक्सचर जो है जिसमें रखा है उसके नीचे बेस पर, बॉटम पे सेटल धीरे धीरे हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. ठीक है. और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या है? ग्रेविटी. क्योंकि वो पार्टिकल्स मोटे होते हैं, ठीक है, हैवी होते हैं, इसलिए वो धीरे 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 नीचे आ जाते हैं. ठीक है.
इसीलिए सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा जैसे थे वैसे रहेगा नहीं, वो धीरे 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 सेडिमेंट होकर के पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, और या फिर हम उसको क्या भी बोलते हैं, कोलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड्स। ओके, a heterogeneous solution in which the particle size is in between 10 raised to power minus 7 centimeter to 10 raised to power minus 5 centimeter, such that the solute particles neither dissolve nor settle down in a solvent, is called colloidal solution. Colloidal solution क्या होता है कि एक ऐसा मिक्सचर या ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर पार्टिकल साइज जो है वो इस पर्टिकुलर साइज में है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच है। ठीक है, और इस तरीके से है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो तो ना तो डिसॉल्व होते हैं, ध्यान रखिए, ना तो डिसॉल्व होते हैं ना ही नीचे सेटल होते हैं। ठीक है, तो इस कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा हेट्रोजेनस सॉल्यूशन या हेट्रोजेनस मिक्सचर जहाँ पे पार्टिकल साइज जो है वो थोड़ा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक है, और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो ना तो डिसॉल्व होंगे ना तो सॉल्यूशन में मिक्स होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, और ना ही नीचे सेडिमेंट होंगे। ठीक है, तो the components of colloidal solutions are the dispersed phase and the dispersion medium। ठीक है, और जो components जो हैं, जो colloidal solution में जो भी components हैं जो कि उसके अंदर मिक्स्ड है मिक्सचर के अंदर, तो वो क्या होते हैं, dispersed phase and the dispersion medium। वो क्या कहलाते हैं, dispersed phase and dispersion medium। disperse मतलब होता है तितर बितर हो जाना, फैल जाना। The solute-like component of the dispersed particles in a colloidal form of the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। ठीक है, dispersing medium क्या होता है, dispersing medium क्या है, वो solute। ठीक है, वो जो solute या फिर जो भी component जो है, जो particles जो है वो हैं, ठीक है, एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, और वो कंपोनेंट जिसके अंदर वो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे अगर जैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो एक जो क्वांटिटी जो है ज़्यादा है जिसके अंदर वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो वो तो है डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, और जो दूसरा जो सॉल्यूट है या जो मोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उस डिस्पर्सिंग मीडियम में, वो क्या कहलाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, या डिस्पर्स्ड पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, अब कोलॉइड के जो पार्टिकल्स के जो साइज है वो नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, इतना स्मॉल होता है। They do not settle down when left undisturbed, that is colloid, they is quite stable। और colloid जो होते हैं वो stable होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको आप खाली छोड़ भी देते हैं तो भी वो नीचे सेटल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल नहीं होंगे, वो एज इट इज ऊपर ही रहेंगे। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration। ठीक है, अब सिंपली आप फिल्टर पेपर से उसे सेपरेट नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टेक्निक है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, उसके थ्रू इनको पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है इसके अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको ऐसे 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 घुमाया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है वो नीचे चले जाता है और डेंसिटी जिसकी कम है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उस मिक्सचर के अंदर जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा और जो डेंसिटी ज़्यादा है जो कि थोड़ा हैवी है वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनको सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन।
ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर, ठीक है। और कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्योंकि भाई पार्टिकल्स जो हैं वो फैले हुए हैं और अपनी जगह उसी जगह पर सेटल्ड हैं, स्टेबल हैं, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा वो, क्योंकि लाइट को थ्रू नहीं देगा, कंप्लीट लाइट जो है उसको पास नहीं होने देगा, वो पार्शियली उसको पास होने देगा, तो वो कैसा होगा, वो ट्रांसल्यूसेंट होगा। The particles of a colloidal solution scatter light. That is, when a strong beam of light is passed through the colloidal solution, the path of the beam becomes visible. ठीक है। अब पार्टिकल्स क्या होंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो स्कैटर करेंगे लाइट को, डेफिनेटली लाइट को स्कैटर करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि जब वो सॉल्यूशन से एक बीम ऑफ लाइट पास होगी तो वो आपको नज़र आएगा, मतलब वो आपको दिखेगा। द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, ठीक है। तो वो आपको रास्ता जो बीम जा रही है वो दिखेगा। यस, नेक्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन। और कोलॉइडल डायमेंशन क्या है? 10⁻⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। ये वही है, आप कंफ्यूज नहीं हो, 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटी मतलब भी होता है 10⁻²। तो जब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस विल बी 10⁻⁹ मीटर और टू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो ये सेम ही है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बस ये है कि वहाँ ऊपर सेंटीमीटर में बताया था, ये यहाँ पर मीटर में बता रहा है, ठीक है। तो इट इज़ द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि मौजूद होते हैं मिक्सचर के अंदर और कोलाइड में जो प्रेजेंट होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाते हैं। और डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड एक्ट्स एज अ मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो वो मीडियम जिसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स जो है या डिस्पर्स्ड फेज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। वो जो है वो तो उसका मीडियम जो है जिसके अंदर वो मौजूद है, दैट इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं तो देख लीजिए, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम एंड टाइप एग्जाम्पल, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज जैसे लिक्विड गैस इन एरोसोल फॉग, ठीक है। और कैसा हो गया ये? क्लाउड्स। और एग्जाम्पल क्या होगा? मिस्ट, ठीक है। तो जो ओस होती है, मिस्ट होती है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या होती है? लिक्विड गैस होती है। और एरोसोल फॉग, जो एयर के अंदर जो फॉग है उसके अंदर मौजूद एक लिक्विड गैस जो है, ठीक है। और कैसा हो गया ये क्लाउड्स वगैरह जो है इनके एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। अब सॉलिड गैस एग्जाम्पल क्या है? एरोसोल स्मोक, ठीक है। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में होती है मौजूद ये, ठीक है। सॉलिड गैस क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस, ठीक है। और वो स्मोक के अंदर मौजूद है, एरोसोल। सो दैट इज, और वो निकलती कहाँ से? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो कार से जो धुआं निकलता है उसके अंदर भी यही मौजूद होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसके अंदर ये वो भी एक कोलॉइड होता है। और कैसा कोलॉइड है? सॉलिड गैस, सॉलिड जो कि गैस के अंदर मौजूद है, ठीक है। और देखें तो गैस लिक्विड, गैस लिक्विड का एग्जाम्पल है कि कोई गैस जो कि डिस्पर्स्ड है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, ठीक है। जैसे कि फोम या शेविंग क्रीम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है? गैस जो है वो मिली हुई होती है, जो फोम होता है उसके अंदर वो भी एक कोलॉइड होता है। और उसके अंदर लिक्विड के अंदर गैस जो है वो मिक्स्ड होती है। नेक्स्ट इज लिक्विड इमल्शन, ठीक है। और मिल्क या फेस क्रीम, ठीक है। तो जो दूध है वो भी एक इस तरीके का ही एग्जाम्पल है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये हो गया मड गैस, सॉलिड फोम, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। सॉलिड का भी एग्जाम्पल है जिसके अंदर बात करें कलर्ड जेमस्टोन्स, ठीक है। तो कलर्ड जेमस्टोन्स जो हैं
वो भी एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या होगा, एक जेमस्टोन के पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स जो हैं वो किसी एक दूसरे जेम के अंदर अगर मिक्स्ड हैं और वो सेपरेट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको ऐसे ही दिखेंगे कि वो जो सॉलिड के अंदर जो दूसरा जो जेम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और वो क्या है, वो मिक्स्ड नहीं है, ऑफ कोर्स मिक्स्ड नहीं है, पर वो स्टेबल है उसी जगह, राइट, वो सॉलिड में उसी जगह पर स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, अब ये बात करते हैं, द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली इन अ जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट होता है उनके अंदर भी, और वो क्या होता है, जिगजैग डायरेक्शन में जिगजैग मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, और इसी को ही बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल मूवमेंट होता है वो जिगजैग होता है, एंड दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। और ये क्यों होता है, द ब्राउनियन मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है उससे टकराते हैं, फिर मूव करते हैं, तो इस तरीके से, इसीलिए वो ब्राउनियन मूवमेंट होता है। द रीज़न वाई ब्राउनियन मूवमेंट हैपेंस इज कि जो डिस्पर्सिंग मीडियम है उससे टकराते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल्स से और टकराता है, और मूवमेंट तो हो ही रहा होता है, लेकिन वो टकराने से वापस पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है। चलिए एक बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन इसकी समझ लेना, क्या होता है टिंडल इफेक्ट, द फेनोमेनन ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स visible due to scattering of light by the colloidal particle is called Tyndall effect, ठीक है, तो वो एक phenomenon जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट जब हम किसी सोल्यूशन से पास कर रहे हैं और वो लाइट जो है वो विजिबल होती है, और वो क्यों विजिबल होती है, क्योंकि वो लाइट जो है वो ब्लॉक नहीं कर रही है, वो स्कैटर कर जा रही है, ठीक है, इसलिए हमको वो लाइट जो है विजिबल होती है। आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज से शायद आपको क्लियर होगा, ठीक है, तो यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाले इमेज में देखिए ध्यान से, दिस इमेज, अब इसमें देखेंगे कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से और बीम ऑफ लाइट जो है वो पास किए जा रही है, ठीक है, और वो अब देखिए बीम ऑफ लाइट जो है नॉट विजिबल इनसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है, और ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें शुगर मिलाई गई है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, पूरे में जो है थ्रू आउट जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, बीम ऑफ लाइट जो है वो नहीं दिखेगी अंदर सॉल्यूशन के, वेयरएज नीचे वाले देखेंगे तो नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वहाँ पर लिया गया है सोप सॉल्यूशन, वहाँ पर अब सोप सॉल्यूशन इज साबुन का पानी, ठीक, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं जब बीम ऑफ लाइट जो है वो क्रॉस की जा रही है, तो बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल है उस सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो सोप पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन है और वहाँ पर बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होगी, ठीक है, तो दिस इज टिंडल इफेक्ट। तो अगर आता है टिंडल इफेक्ट आपको पेपर में, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और इस डायग्राम को, इस इमेज को याद रख लेंगे, तो इस इमेज को बना करके आ जाना। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकल साइज देखे बात करें तो पार्टिकल साइज इज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, और यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर साइज जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो पार्टिकल साइज इज बिटवीन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स बिगर है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज जो है वो है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, और यहाँ पे बात करें तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक साइज है, और सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक है।
नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं होते पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे भी, क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। द पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, और इस केस में माइक्रोस्कोप के में पार्टिकल्स जो हैं वो दिख जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्या है डिफरेंस, द पार्टिकल ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब पार्टिकल जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के वो मिल सकते हैं किस मेथड के थ्रू, इधर बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है सेपरेशन के, और वो आपको बताएंगे कि कैसे सेपरेट किए जाते हैं मिक्सचर से ये पार्टिकल्स। और इसमें बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इसमें नहीं कर सकते, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से नहीं सेपरेट कर सकते। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, अभी मैंने ऊपर देखा था शुगर सॉल्यूशन जो था उसमें स्कैटरिंग नहीं हो रही थी, लाइट जो है स्कैटर नहीं कर रही थी। द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, जो ट्रू सॉल्यूशन जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट को पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा डिजॉल्व हो गया है, वो ट्रू सॉल्यूशन है, इसीलिए वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल क्लियर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। और कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसल्यूसेंट, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होंगे, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब पार्शियली लाइट पास दे पाएंगे वो। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें से उनके थ्रू जब देखा जाए तो वो थोड़ा सा चीज़ें दिखती हैं, राइट। तो पार्शियली लाइट को अलाउ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हैं उनका साइज देखिए, तो साइज जो है कोलॉइडल सॉल्यूशंस का वो ये है, ठीक है। और जो सस्पेंशन है वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज इन बिटवीन 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो इसमें साइज जो है वो 10⁻⁻⁵ ये साइज के होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो 10⁻⁵ से बड़े होते हैं, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, राइट। और यहाँ पर 10⁻⁶ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ भी देखा था हमने ऊपर, तो 10⁻⁷, तो मतलब ये जो है वो छोटे हैं, सस्पेंशन में थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो पार्टिकल्स को, क्योंकि स्टेबल है, ठीक है, तो पार्टिकल्स को, और जब आप मीडियम को छोड़ देंगे काफ़ी देर के लिए तो भी वो सेटल डाउन नहीं करेंगे, वो नीचे सेटल नहीं करेंगे। लेकिन सस्पेंशन में जैसे मड इन वाटर, आपको बताया था, मड इन वाटर को आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो मड जो है वो नीचे आ जाएगी। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन एंड सस्पेंशन इज अलाउड टू स्टैंड, ठीक है। तो अलाउड टू स्टैंड मतलब जब उसको आप छोड़ देंगे, जब उसको आप हिला नहीं रहे, उसको मूव नहीं कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बेस, एट द बॉटम, ठीक है। एंड फाइनल पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी फिल्टर आउट, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेशन से, ठीक है, सेपरेट नहीं किए जा सकते पार्टिकल्स, फिल्टर पेपर से जो है सेपरेट नहीं किए जा सकते पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन इजीली बी फिल्टर्ड आउट, ठीक है। जैसे मिट्टी हो गई, चॉक पाउडर हो गया, ये चीज़ें आप मिक्सचर से थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो फिल्टर पेपर से वो पास नहीं होगा, तो उससे फिल्टर पेपर के थ्रू इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, तो बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है, और क्या सब्सटेंस है उनकी, क्या केमिकल, किस केमिकल से किस सब्सटेंस से बने हैं वो, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड है, या तो वो एलिमेंट्स से किसी से बना हुआ होगा या फिर किसी कंपाउंड से बना होगा। एलिमेंट्स आपको बता देते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है
कि जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की जो कि फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि कार्बन, तो कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, या तो एक या एक से ज़्यादा जो एलिमेंट जो है वो जब मिलेंगे तो देन इट इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड मतलब भी आपको पता है, कंपाउंड मतलब होता है जब मल्टीपल चीज़ें जुड़ती हैं, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये देखिए रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले बताया था एलिमेंट 1661 में, अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स अगो, ठीक है। तो उन्होंने बताया था एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एवरी सब्सटेंस ऑन द अर्थ मेड फ्रॉम वन और मोर एलिमेंट, ठीक है। तो कोई भी मैटर है उसको बनाए तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, या तो वो एक सिंगल एलिमेंट ही मौजूद है सब में, या मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद है उसमें। देयर आर 115 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार, अभी तक हमें अप्रॉक्सीमेटली 115 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अमंग दीज एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स अकर इन नेचर, और इसमें से 92 नेचर में मिल जाते हैं। Whereas 23 have been made in nuclear laboratories, the majority of the elements are solids, ठीक है। और 23 जो हैं वो बनाए गए हैं लैबोरेटरीज में, ठीक है, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, और मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? सॉलिड। 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो 11 एलिमेंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी गैस की फॉर्म में रहते हैं। एलिमेंट्स की बात हो रही है, ध्यान रखिए। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो अब 2 एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं? वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, मर्करी एंड ब्रोमीन, ठीक है। एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर, ठीक है, जो कि 1743 से 1794 तक रहे। A French chemist defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. तो उन्होंने बताया, एक फ्रेंच केमिस्ट, उन्होंने बताया कि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि उसी से ही सब कुछ बना है, और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और केमिकल रिएक्शंस वगैरह करके उसको नहीं तोड़ा जा सकता फर्दर। एलिमेंट्स ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर, और एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं एक ऐसे सब्सटेंस से जो कि मेड ऑफ द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर, जो अगर एटम्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स जो है वो मेनली किस में डिवाइड किए गए हैं? जो क्या बताएं, वो है या तो मेटल्स होते हैं, या नॉन मेटल्स होते हैं, या मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिंक, मर्करी, ये सब क्या है? एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली या तो सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे या फिर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। कौन सी? ये फॉलोइंग। तो अब मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, दे हैव जनरली silver gray color, however some metal on their alloys have golden yellow color, ठीक है। कुछ मेटल्स जो हैं वो भले ही गोल्डन येलो कलर के होते हैं, लेकिन जनरली जो मोस्टली मेटल्स हैं वो सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? कॉपर, विच इज रेडिश इन कलर। जो कॉपर है वो स्लाइट रेड होता है कलर में। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है? नॉन मेटल की बात करें तो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या है? वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स हैव अ लस्टर, द फ्रेशली कट सरफेस हैज अ शाइन ऑन इट, ठीक है। तो लस्टर क्या होता है? उसके ऊपर आपको एक चमक मिलती है, किसके ऊपर? मेटल्स के ऊपर। और अगर फ्रेशली कट सरफेस है, फ्रेशली कट सरफेस मतलब कि जो एक्सपोज्ड एयर पे अभी जस्ट हुई है, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक शाइन होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, तो उनकी तो कलर्स और
शाइन जो है वो अलग अलग रहती है और उसमें बहुत वैरायटी है। मेटल्स की बात करें, दे इजीली कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या आगे भी पढ़ेंगे हम, तो जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं मेटल्स और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कोई इक्विपमेंट है वहाँ पर अंदर उनके मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, या तो मेटल या फिर कोई कंडक्टर, ठीक है। तो वो कंडक्टर क्या होते हैं? मोस्टली मेटल। दे आर जनरली नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वो जनरली ना तो मैलिएबल होते हैं, ठीक है। मैलिएबल मतलब कि जब उसको पिघालते हैं, ठीक है, तो दूसरा शेप ले लें, वो ऐसा यूजुअली नहीं होते हैं, ठीक है। और ना ही डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल भी मतलब कि ऐसा कि जब उनको आप ठोक रहे हैं या पीट रहे हैं तो वो उस तरीके का शेप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए ठोकने पीटने से, ठीक है। हालांकि देखो ये अभी बात करें जनरली, ठीक है, दे आर जनरली नाइदर। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हमेशा ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए बात हो रही है जनरली नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। दे आर मैलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ठीक है। और वो मैलिएबल होते हैं जब उनको ठोकते हैं पीटते हैं, ठीक है, तो उनकी शेप जो है वो बदल जाती है, बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स, दे विल नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम और दे विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो आपने देखा होगा जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं तो उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, वो किसी नॉन मेटल की होती है या फिर इंसुलेटर की होती है। क्यों? क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर नहीं दे, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि जब करंट वायर के थ्रू, मेटालिक वायर के थ्रू जा रहा है, उसके ऊपर कोटिंग नहीं है, तो चांसेस हैं कि कोई भी जो दूसरा इंसान या कोई भी उस वायर को टच करेगा तो उसको शॉक लग जाएगा। They are sonorous. Example: gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. Sonorous मतलब क्या होता है? Sonorous मतलब कि जब आप उसको स्ट्राइक करेंगे तो मेटल के अंदर से खन की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो मेटल के अंदर ही होता है, तो दे आर सोनोरस, ठीक है। तो उनके अंदर से टन या खन आवाज़ आती है, ठीक है। एग्जाम्पल होते हैं मेटल के गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। और एकमात्र मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो मरकरी ही एकमात्र एक ऐसा मेटल है, ठीक है। बाकी तो सारे मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है दैट विल बी फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है। तो नॉन मेटल की बात करें तो उनके अंदर से खन आवाज नहीं आती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एट्सेट्रा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स भी देख लेते हैं। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की दिखाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स को दिखाएंगे, और कंबाइंड प्रॉपर्टीज दोनों की अगर मिलेगी किसी एलिमेंट के अंदर तो देन दे आर मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो और कुछ नॉन मेटल्स की, ठीक है। ये आप देख लें, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ठीक है। ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं अ प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स
कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों और कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट रेशो, ठीक है, जो कि केमिकली कंबाइन हो गए हैं और एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, एक पर्टिकुलर रेशो में, सच दैट इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मीन्स, और वो वापस अलग कैसे हो सकते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल मेथड के थ्रू ही, ठीक है। तो देन इट इज़ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो मिक्स होंगे किसी केमिकल मेथड या केमिकल रिएक्शन के थ्रू, एक पर्टिकुलर सेट डिफाइंड रेशो में, एक सेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। और अगर उनको अलग करना चाहें तो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो ही अलग होंगे, किसी केमिकल मेथड के थ्रू ही वो अलग होंगे। सो देन इट इज अ कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द 2 or more elements present in a compound are called constituents or components of the compound, ठीक है। और वही एलिमेंट्स जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं वो कहलाएंगे, वो एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो 1:8 बाय वेट, ठीक है। अब ये जो रेशो है 1:8 बाय वेट है, ध्यान रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट जो है वो 16 है और हाइड्रोजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं, तो दैट इज़ 2। तो 2 जो है वो 16 ग्राम 16 मास से कंबाइन होगा, तो दैन द रेशो कम्स आउट टू बी 1:8, ठीक है। तो बात करें तो वाटर क्या है? कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होते हैं किस रेशियो में? 1:8, ठीक है। तो पर ग्राम हाइड्रोजन पे 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होगा, ठीक है। और वो बनाते हैं क्या? पानी, वाटर। The water can be broken into its constituents only by electrochemical method, ठीक है। और वाटर को क्या है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है उसके थ्रू जब आप करेंगे तो वाटर को वापस से एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, H2+O2, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या है? उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। द कंपाउंड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। और जो फिर उसके बाद कंपाउंड बनते हैं उनको भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि या तो एसिड बनेगा या कोई बेस बनेगा या कोई सॉल्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल दे रखा, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 1 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर एंड 2 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स या आयरन टर्निंग्स कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, that is iron filings and yellow particles of sulfur can be seen with naked eye, which is the property of a mixture, ठीक है। देखिए, जब 1 ग्राम सल्फर पाउडर जो है वो मिलाया गया 2 ग्राम आयरन टर्निंग से, तो वो एक मिक्सचर बना, एक मिक्सचर तैयार हुआ। अब बात कर रहे हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आयरन फाइलिंग्स और येलो पार्टिकल्स, सल्फर, ठीक है, वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, वो नॉर्मली आपको दिखते हैं, ठीक है, जो कि एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी है, वो आपको दिखते हैं। द आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिजॉल्विंग द मिक्सचर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर डिजॉल्व बट नॉट दी आयरन, ठीक है। और उनको कैसे अलग कैसे कर सकते हैं? जब उनको किसी आप कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, जब आप उसमें उसको मिक्स करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो सल्फर जो है वो मिक्स हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सल्फर मिक्स हो जाएगा, लेकिन आयरन मिक्स नहीं होगा। एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर। और क्या किसी फिजिकल मेथड के थ्रू कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है? सेपरेट कर पा रहे हैं? यस। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो मिक्सचर है। The constituents iron and sulfur are not evenly spread. At some places, iron fillings are more than sulfur. ठीक है, तो constituents
द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयरन एंड सल्फर, जो कि मिक्सचर में क्या क्या मौजूद है, आयरन है और सल्फर है, ठीक है, और वो इवनली स्प्रेड नहीं है। इवनली स्प्रेड मतलब वो प्रॉपरली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एट सम प्लेसेस आयरन फिलिंग्स आर मोर देन सल्फर, और कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होगा उस मिक्सचर में कि आयरन जो है वो ज़्यादा मिलेगा सल्फर से। नो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द सल्फर पाउडर इज मिक्स्ड विद आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो आयरन फाइलिंग्स के साथ में क्या होगा, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी जब सल्फर पाउडर मिक्स होगा आयरन फाइलिंग्स के साथ। द पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो आयरन और सल्फर की जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। The product formed on heating 1 gram of sulfur powder and 2 gram of iron turning is called a compound, ठीक है। तो ये तो ऊपर वो जो था वो मिक्सचर था, लेकिन अब अगर हीट करें 1 ग्राम सल्फर को 2 ग्राम आयरन टर्निंग से के साथ में, तो वो बनाएगा एक कंपाउंड। The product formed is iron sulfide. The yellow particles of sulfur and filings of iron are no longer visible. और जब वो ऐसा होगा, जब हीट करेंगे आयरन और सल्फर को साथ में और वो भी इस रेशियो में, तो एक कंपाउंड बनेगा और उस कंपाउंड का नाम है आयरन सल्फाइड, ठीक है। और जो सल्फर के येलो पार्टिकल्स थे और जो आयरन की जो फाइलिंग्स थी वो अब नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अब उसने केमिकल चेंज हो गया है उसके अंदर, अब वो चेंज होकर के एक कंपाउंड बना लिया है, अब वो सिर्फ मिक्सचर नहीं है। द आयरन और सल्फर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द आयरन सल्फाइड बाय एनी फिजिकल मीन्स, किसी फिजिकल मेथड के थ्रू उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। द कंपोजिशन ऑफ आयरन सल्फाइड इज सेम थ्रू आउट, और जो कंपोजिशन है आयरन सल्फाइड जो बना है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आयरन सल्फाइड बन गया और बाकी आयरन और सल्फाइड जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अलग है, ऐसा नहीं है। तो करेगा तो पूरा रिएक्ट करेगा और पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आयरन सल्फाइड उस कंपोजिशन में। कंपोजिशन मतलब उस मिक्सचर में। हीट एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट इवॉल्व होगी, हीट बाहर मिलेगी, ठीक है। तो हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में। द प्रोडक्ट कंटिन्यूज ग्लोइंग विद रेड डल कलर इवन व्हेन द हीटिंग इज स्टॉप्ड, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो चमकेगा कैसा, रेड डल कलर, ठीक है, डल रेड कलर का। और भले ही आप हीटिंग स्टॉप भी कर देंगे तो भी वो चमकेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट आयरन सल्फाइड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन सल्फर, ठीक है। और आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज जो है, उसके एलिमेंट्स जो है या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, उसके एलिमेंट्स जो है आयरन और सल्फाइड, उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। क्योंकि अब वो जो है उसके केमिकल चेंज आ गया है, वो टोटली कंपाउंड ही दूसरा है। पहले तो क्या था, आयरन और सल्फर, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी, अब आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज चलेंगी, ठीक है। देखिए लास्ट चीज और देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? तो मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब एलिमेंट्स या फिर कोई कंपाउंड्स मिक्सअप हों और मिक्सअप हो इस तरीके से कि कोई केमिकल चेंज उनमें ना हो, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कोई नया कंपाउंड नहीं बने, सो देन इट इज अ मिक्सचर। अब उस बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं, देन दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स, ठीक है। और वो कुछ नया कंपाउंड ही तैयार करते हैं, इसलिए उनको कंपाउंड बोलते हैं। अब मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब मिक्सचर जो है उसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन है। वेरिएबल कंपोजिशन मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम कंपोजिशन, मतलब इस तरीके से। लेकिन जैसे कि अपन बात करें पानी की, तो H2 + O2 gives H2O। अब उसमें हर कोई जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 1 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है कंपाउंड में। मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता।
ठीक है, कि शुगर जो है वो जो शुगर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर की मतलब कि आप चाहो तो ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, राइट। तो द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कोई भी जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, वो फिक्स्ड, उनका सेट रेशियो है, उसी तरीके से ही बनेगा। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, ठीक है। और मिक्सचर में क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर में वो प्रॉपर्टीज मिलेंगी किसकी, जो कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बना है, जिस सब्सटेंसेस से मिलकर के वो मिक्सचर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड के अंदर क्यों, क्योंकि वो कंपोनेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट ही चेंज हो गया, नया कंपाउंड बना लिया, रिएक्ट कर लिया है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स। किस केस में, मिक्सचर के केस में। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। और कंपाउंड्स के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग किया जा सकता है या तो किसी केमिकल मेथड से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है, जब उसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं उसके थ्रू, then it is electrochemical method. Alright students, so this was the second chapter and these are the important points. I'm going to share the NCERT solutions with you as well. Alright, so I hope you understood the chapter is the matter around us pure. So now I believe you should be able to answer कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो प्योर है कि इम्प्योर है, कि मिक्सचर है, हेट्रोजेनस है, होमोजेनस है, सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या सोल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, ये सारी चीज़ें हमें पता चली, ठीक है। तो आई वुड वांट यू टू आल्सो रीड this chapter at home, ठीक है, and do the question answer. So this is what I want you to do. Alright, so that is all from my side for today. Keep learning, keep studying, stay safe.